Assalamualaikum everyone. Class 2 subject computer and chapter number 5, the keyboard and its functions. Okay, today we'll learn about the keyboard and its different functions. Okay, a keyboard is an important part of the computer. Keyboard is an important part. Why it is an important part? Because um, whenever you write in a notebook, you need pencil or pen. Okay, likewise we need keyboard to type in computer. So जैसे आप पेन और पेंसिल के बिना नोटबुक में लिख नहीं सकते, वैसे कीबोर्ड के बिना हम कंप्यूटर में टाइप नहीं कर सकते हैं. That's why it is an important part. It has many keys on it. There are many keys in keyboard. These keys are used to type letters, numbers and symbols. ये कीज़ किस लिए होती है? टाइप करने के लिए. क्या टाइप करने के लिए? लेटर्स, नंबर्स एंड सिम्बल्स. यू कैन सी हियर these are letters, alphabet keys. These are numbers, numeric keys or number keys, and symbols you can see here. ये जो नंबर के ऊपर है, above the numbers, these are the symbols you can press or you can type in your computer. You can see this is the keyboard and many keys. There are many keys on it. I'll show you. This is the keyboard and there are many keys on it. You can see these are alphabet keys. They are not in an order. Order में नहीं होता है. Alphabet keys are from A to Z. Then you can see here number keys. Here also you can see these are number keys. This is called numeric keypad and these are number keys. Okay, then you can see special keys like space bar, enter, backspace, delete key, arrow keys, caps lock key. These all are called special keys. And you can see here symbols, different symbols you can see here. These are above the number keys. These all are called symbols. Understand? Now we'll learn about alphabet keys. Alphabet keys have letters on them from A to Z, but they are not given in an order. ये जो alphabet keys होती है वो A to Z होती है, पर वो ऑर्डर में नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे A, B, C, D, E, F ऐसे नहीं होता है. दिस कीज आर जम्बल्ड. ओके, फॉर like you can see A here, you can see B is here, C is here, D is here. वैसे जम्बल्ड होती है. Alphabet keys are 26 in number. Alphabet keys, how many alphabet keys are there? So you know that there are 26 alphabet keys. You have learned in UKG, LKG, UKG that there are 26 alphabets, right? We can type letters, words and sentences without the help of alphabet keys. आप अल्फ़ाबेट कीज़ के यूज़ से क्या कर सकते हो? तो यू कैन टाइप लेटर्स, यानी कि A, B, C, D कोई भी लेटर्स यू कैन टाइप. वर्ड्स फॉर एग्जांपल यू कैन टाइप विथ द हेल्प. ऐसे कोई भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हो. यू कैन टाइप योर नेम, यू कैन टाइप योर पेरेंट्स नेम, यू कैन टाइप योर फ्रेंड्स नेम, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टाइप. एंड सेंटेंसेस, सो लॉन्ग सेंटेंसेस you can type. You can type these sentences also with the help of alphabet keys. Alphabet keys की help से हम letters, words and sentences type कर सकते हैं, right? Now type name. So you have to write your name here. Whenever I will do the practical, जब भी मैं practical कराऊंगी, then we will do this के वहाँ पे हम टाइप करें नेम. पर अभी आपको आपकी पेंसिल से यहाँ पे नेम लिखना है. प्रेस द कीज दैट स्पेल योर नेम. यू विल फाइंड योर नेम ऑन द स्क्रीन. प्रेस द कीज यानी कि फॉर एग्जांपल आपका नाम है आफिया.
तो यू कैन प्रेस ए फर्स्ट, देन यू कैन प्रेस एफ, देन यू कैन प्रेस आई, देन यू कैन प्रेस वाई एंड देन यू कैन प्रेस ए। ऐसा आप प्रेस करोगे आपका स्पेलिंग तो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको आपका नाम दिखाई देगा। अंडरस्टैंड? नाउ these are number keys। क्या होता है नंबर कीज? आई शोड यू नंबर कीज ये है एंड ये है। हमारे कीबोर्ड में 2 बार आती है नंबर कीज। फर्स्ट तो ये अल्फ़ाबेट के ऊपर आती है 1 2 9 एंड 0 एंड ये जो है कीबोर्ड के राइट साइड में होती है। यू कैन सी हियर, सी 1 से 9 एंड 0, दिस कीज आर नंबर कीज एंड इट इज़ अबाउट द अल्फ़ाबेट कीज। And another number keys are on the right side of the keyboard and this is called numeric keypad। Number keys have numbers on them। number keys के ऊपर क्या होता है? numbers। they are 10 in numbers। ये 10 keys होती है। that is from 0 to 9। वो 0 से 9 होती है। 0 you can see here and then 1 2 3 4 5 6 7 8 9। They are present above the alphabet keys and are given in number। मैंने जैसे बोला कि अल्फ़ाबेट कीज़ के ऊपर होती है। We can type our age, roll number, house number etc। ये नंबर से हम क्या टाइप कर सकते हैं? Your age यानी कि आप कितने साल के हो, आपका रोल नंबर जो है वो टाइप कर सकते हो, आपका हाउस नंबर टाइप कर सकते हो, आपका मोबाइल नंबर टाइप कर सकते हो एट्सेट्रा। जहाँ पे भी नंबर्स लिखना होता है यू कैन टाइप दिस नंबर कीज। यू आर यूजिंग दिस नंबर कीज एंड यू कैन टाइप नंबर्स। ओके, द नंबर कीज आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड के राइट साइड पे नंबर कीज होती है। दिस इज कॉल्ड द न्यूमेरिक पैड। इसको क्या, दिस आर नंबर कीज बट इट इज कॉल्ड न्यूमेरिक कीपैड, राइट? नाउ टाइप योर रोल नंबर। आपको आपका रोल नंबर टाइप करना है। सो अभी यहाँ पे नोट टेक्स्ट बुक्स है, सो यू कैन राइट योर रोल नंबर हियर। ओके, तो आपका रोल नंबर यहाँ पे लिखना है। प्रेस द एंटर की एंड द कर्सर विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन। अ कर्सर इज अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द स्क्रीन। रोल नंबर प्रेस टाइप करके आपको एंटर की को प्रेस करना है ना। एंटर की क्या है वो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं कि एंटर की को प्रेस करने से जो हमारी स्क्रीन पे कर्सर होता है, कर्सर क्या होता है? कर्सर इज़ अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन। कर्सर एक ब्लिंकिंग लाइन है जो एक सेकंड के लिए दिखता है, दूसरे सेकंड नहीं दिखता, फिर तीसरे सेकंड पे दिखता है, फिर चौथे सेकंड पे नहीं दिखता। तो वो एक स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन है और वो जहाँ पर भी आपकी स्क्रीन पे हो वो हम वहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। सो रोल नंबर लिखने के बाद आपको प्रेस द एंटर की प्रेस करना है तो आपका कर्सर जो ऊपर की लाइन में होगा वो नीचे की लाइन में या जहाँ कहीं पे भी होगा वहाँ से नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा। नाउ टाइप योर एज। क्या लिखा है? टाइप योर एज, बट यहाँ पे जगह नहीं है, सो यू डोंट हैव टू राइट द एज। Then we will learn about special keys। Special keys क्या होता है? These keys have different symbols on them like plus, minus, multiplication, division, inverted comma, colon, semicolon, apostrophe, slash। ये सारे जो भी सिम्बल्स है, सिम्बल्स के कीज़ होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेशल कीज़। देर आर सम मोर कीज़ ऑन अ कीबोर्ड नॉन एज स्पेशल कीज़। इसके अलावा, ये सिम्बल्स के अलावा और भी कई कीज़ है जो कीबोर्ड में है जो उसे हम स्पेशल कीज़ बोलते हैं। लेट अस लर्न अबाउट देम। चलो उसके बारे में सीखते हैं। तो फर्स्ट वन इज स्पेस बार की। स्पेस बार की क्या होता है? स्पेस बार की इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। इट इज़ यूज टू गिव स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट। यहाँ पे यू कैन सी पूरे कीबोर्ड में दिस इज़ द लॉन्गेस्ट की, सबसे लंबी की है। उसको प्रेस करने से क्या मिलता है? जगह होती है। कहाँ पे? 2 वर्ड्स के बीच में या फिर 2 सेंटेंसेस के बीच में।
लेट अस टाइप अ सेंटेंस। यहाँ पे देखो एक सेंटेंस टाइप किया है MYNAMEISKABIR। अब इसमें कुछ समझ आ रहा है आपको? क्योंकि जॉइन लिखा है तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये जो जॉइन लिखा है उसे थोड़ा थोड़ा दूर करने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे? स्पेस बार की। नाउ प्रेस द स्पेस बार की वंस बिटवीन द वर्ड्स टू गिव अ स्पेस। यहाँ पे 4 वर्ड्स है तो वर्ड्स के बीच में आप स्पेस की प्रेस करोगे तो वो कैसे दिखेगा? ऐसे देखो, यहाँ पे क्या है? MY माई, तो यहाँ पे माई टाइप किया, उसके बाद यहाँ पे कर्सर आएगा तो यहाँ पे हमें ये स्पेस बार की को प्रेस करना है। स्पेस बार की प्रेस करोगे तो ये थोड़ी सी जगह हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या लिखना है? NAME टाइप किया, उसके बाद अगेन यू हैव टू प्रेस द स्पेस बार की। तो फिर से हमने स्पेस बार की प्रेस किया तो इतनी जगह हो गई। देन वी हैव टू राइट ISEs लिखने के बाद अगेन यहाँ पे हमें स्पेस बार की प्रेस करना है और उसके बाद KABIR कबीर एंड फुल स्टॉप। तो नाउ यू कैन सी कि विदाउट स्पेस कैसा दिख रहा था और स्पेस बार की यूज़ करने के बाद कैसा दिख रहा है। नाउ यू कैन सी दैट व्हाट इज़ रिटर्न, माई नेम इज़ कबीर, ऐसा प्रॉपर दिखाई दे रहा है, राइट। तो ऐसे ही वर्ड्स, लेटर्स या सेंटेंसेस के बीच में जगह छोड़ने के लिए किसका यूज़ होता है? स्पेस बार की। अंडरस्टैंड? ओके, टर्न द पेज एंड नाउ वी विल लर्न अबाउट कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की क्या होता है? Caps lock key is used to type letters in capitals. Press the caps lock key once and the caps lock light will turn on. Caps lock key letters को कैपिटल में लिखने के लिए यूज़ होता है। You can see here on our keyboard. This is the caps lock key. आप इसको एक बार प्रेस करोगे तो यहाँ पे ये जो लाइट है ये ऑन हो जाएगी और ऑन होने के बाद हमें समझ आ जाएगा कि कैप्स लॉक की ऑन है, एक्टिव है और अब हम जो कुछ भी टाइप करेंगे वो सब कैपिटल में टाइप होगा। तो उसके बाद उसके बाद समझो कि ये टाइप किया कि आई लाइक माई स्कूल, तो यू कैन सी ये सारा कैपिटल में टाइप हुआ, राइट। प्रेस द कैप्स लॉक की अगेन, द कैप्स लॉक की लाइट विल टर्न ऑफ। उसके बाद हम ये लिख लिया, उसके बाद हम फिर से यहाँ पे कैप्स लॉक की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो लाइट है ये ऑफ हो जाएगी। टाइप द सेंटेंस अगेन एंड सी द डिफरेंस। उसके बाद हम फिर से ये वाला टाइप करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि कुछ भी कैपिटल में नहीं आएगा, फिर वो सब स्मॉल लेटर्स में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कैप्स लॉक की ऑन करोगे एंड if the light will turn on you can write in capital letters, and if the light turn off again you can press the caps lock key and the light turn off, so you can write in small letters again. Okay, now enter key. Enter key क्या होता है? The enter key is used to bring the cursor to the next line on the monitor. A cursor has 2 enter keys. यहाँ पे आप देखोगे enter key. This is one enter key and this is the second enter key. So हमारे कीबोर्ड में 2 enter keys होती है और enter key प्रेस करने से क्या होता है? कर्सर दूसरी लाइन में चला जाता है। You can see यहाँ पे देखो क्या लिखा है? I am in class 2, right? यहाँ पे लिखा है I am in class 2 और उसके बाद कर्सर यहाँ पे है। इतना टाइप करने के बाद कर्सर यहाँ पे है। सो नाउ इफ़ यू विल प्रेस एंटर की, अब इसके बाद आप एंटर की प्रेस करोगे तो ये कर्सर यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ओके, प्रेस द एंटर की वंस एंड द कर्सर विल जम्प टू द नेक्स्ट लाइन। जैसे मैंने बोला कि कर्सर यहाँ पे था और इफ़ यू विल प्रेस, अगर हम एंटर की प्रेस करेंगे तो ये कर्सर यहाँ से यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अंडरस्टैंड? सो बेसिकली एंटर की इज यूज टू ब्रिंग द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। देन यू विल सी एरो कीज। एरो कीज क्या होता है?
There are 4 arrow keys that help to move the cursor on the screen. Arrow keys क्या होता है? कर्सर को मूव करने में हेल्प करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल हमारा कर्सर यहाँ पे है. ओके, नाउ अप एरो की इज यूज टू मूव द कर्सर अप. ये अप एरो की है. दिस आर आवर एरो कीज. यहाँ पे यू कैन सी 4 arrow keys are there. Up arrow key, down arrow key, left arrow key and right arrow key. So what are their uses? तो यहाँ पे हमारा कर्सर है. ओके, एंड अप एरो की इज़ यूज टू मूव द कर्सर अप. जैसे ही हम ये अप एरो की प्रेस करेंगे ये कर्सर यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा. अंडरस्टैंड? देन डाउन एरो की इज़ यूज टू मूव द कर्सर डाउन. ये जो डाउन एरो की है वो प्रेस करेंगे तो कर्सर यहाँ पे से यहाँ पे आ जाएगा. ओके, लेफ्ट एरो की इज़ यूज टू मूव द कर्सर लेफ्ट. अगर ये लेफ्ट एरो की इफ यू विल प्रेस, कर्सर विल मूव लेफ्ट साइड. यहाँ से यहाँ पे लेफ्ट साइड में मूव हो जाएगा. एंड if the right arrow key is used to move the cursor right. If you will press right arrow key, the cursor will move to the right. So यहाँ पे right side में move हो जाएगा. So understand the arrow keys. Up arrow key is used to move the cursor up. Down arrow key is used to move the cursor down. Left arrow key is used to move the cursor left, and right arrow key is used to move the cursor right. Okay. Then backspace key. The backspace key erases the letters type on the left side of the cursor. You can see here, this is the backspace key. Backspace key is work like an eraser. Backspace key eraser के जैसे वर्क करता है और वो कर्सर के लेफ्ट साइड वाले लेटर्स को इरेज करता है. ओनली लेफ्ट साइड के लेटर्स को. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है आई लिव इन दिल्ली. तो यहाँ पे आई के बाद डबल एन लिखा है. ये एन बाय मिस्टेकन लिख दिया है. अब हमें इसको इरेज करना है. तो व्हाट वी कैन डू? वेयर इज़ द कर्सर नाउ? अगर हमने ये टाइप किया तो ऑब्वियसली कर्सर यहाँ पे होगा. नाउ इट इज़ आफ्टर द वर्ड दिल्ली. क्या है? दिल्ली वर्ड के बाजू में है. प्रेस द राइट एरो एंड की एंड ब्रिंग द कर्सर आफ्टर द वर्ड इन. हमें लेफ़्ट एरो की, ये जो लेफ़्ट एरो की है उसको प्रेस करके हमें कर्सर को यहाँ पे लाना है. ओके, देन प्रेस द बैक स्पेस की टू इरेज एक्स्ट्रा एन फ्रॉम द वर्ड इन. ये जो वर्ड आई डबल एन इन है उसमें से ये इन को इरेज करना है. तो कर्सर को यहाँ पे लाके हमें क्या प्रेस करना है? ये जो बैक स्पेस की है उसे प्रेस करेंगे वंस, एक बार. तो ये वाला एन है जो इरेज हो जाएगा और कर्सर यहाँ पे आ जाएगा. सो बैक स्पेस की इज यूज टू इरेज द लेटर्स, लेफ्ट साइड लेटर्स फ्रॉम द कर्सर. नाउ लास्ट डिलीट की. डिलीट की क्या होता है? यू कैन सी हियर, दिस इज द डिलीट की इन कीबोर्ड. एरो कीज के ऊपर है डिलीट की. द डिलीट की इरेजेस द लेटर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर. अब आपको याद रखना है कि बैक स्पेस की किस लिए यूज़ होता था? कर्सर के लेफ़्ट साइड वाले लेटर्स को इरेज करने के लिए. और डिलीट की किस लिए यूज़ होता है? तो कर्सर के, ये जो कर्सर है उसके राइट साइड वाले लेटर्स है उसको इरेज करने के लिए यूज़ होती है. नाउ आई टाइप, आपको क्या टाइप करना है? आई लाइक टू ईट मैंगोज. ये टाइप करना है. यहाँ पे 2 जी है. तो मैंगोज का स्पेलिंग यू नो डैट, उसमें डबल जी नहीं आता है. तो एक जी को इरेज करने के लिए हम क्या करेंगे? टू डिलीट द लेटर जी इन द सेंटेंस. ये जी को इरेज करने के लिए मूव द कर्सर यूजिंग द लेफ्ट एरो की. अब ये हमने टाइप किया तो ऑब्वियसली कर्सर यहाँ पे होगा. तो उसको लेफ्ट एरो की प्रेस करके यहाँ पे लाना है. कर्सर को यहाँ पे लाना है. देन प्रेस द डिलीट की. यहाँ पे कर्सर आ गया. अब आपको क्या प्रेस करना है? ये वाला डिलीट की. डिलीट की प्रेस करोगे तो ये जो राइट साइड वाला जी है वो इरेज हो जाएगा. अंडरस्टैंड? द लेटर जी विल बी रिमूव. सी, अंडरस्टैंड? तो यू हैव टू रिमेंबर कि
कर्सर के जो लेफ़्ट साइड वाले लेटर्स है वो किससे इरेज होंगे, बैक स्पेस की से, और कर्सर के जो राइट साइड वाले लेटर्स है वो किससे इरेज होंगे, डिलीट की से. अंडरस्टैंड एवरीवन. नाउ वंस आई एम रिवाइजिंग alphabet keys are used to type letters, numbers and sentences. Then number keys are used to type numbers. Then special keys, you can see here this all the symbol keys are special, and except that symbol keys, spacebar key is used to give space between text, words, sentences or letters. Then caps lock key is used to type letter in capital. Enter key is used to bring the cursor move to the next line. Arrow keys, up arrow key is used to move the cursor up. Down arrow key is used to move the cursor down. Left arrow key is used to move the cursor left, and right arrow key is used to move the cursor right. Then backspace key erases the letters type on the left side of the cursor. And last, delete key erases the letters on the right side of the cursor. Understand everyone? Our chapter is finished here. I hope you understand. Allah Hafiz.